Hello students, this is the second video lecture of chapter 13 Reproduction in Plants, class 7th Science. In this video lecture we are going to talk about vegetative reproduction in plants. Okay, so if you recall the first video lecture, we discussed something known as vegetative parts and something known as vegetative, non-vegetative, you can say. Although we discussed vegetative parts, you can say non-vegetative parts or sexual parts or reproductive parts. Okay, when I say these, parts, you can basically refer to that, if you exactly read the word, that means what? Vegetative, that means roots, stems, leaves of a plant. Apart from this, when I talk about reproductive or sexual part, that means what? That is nothing but flower. Okay, so when I talk about, if a plant want to reproduce through vegetative part, okay, if the plant wants to, grow a new plant from itself, okay, if a parent plant wants to grow new plant from itself, what, procedure it has to follow. So we discussed about asexual reproduction, that in some non-flowering plants, if the plant is not having flowers, then it would be able to reproduce with the help of spore formation. If you recall those three plants, mosses, ferns and dash, that is bread molds. You can simply refer to it as molds, M-O-U-L-D-S, molds. But these molds are usually found on bread. You have usually observed on, you have usually observed these on bread. So this is, these are the three non-flowering plants. Okay, when I say, about other, asexual methods that we already discussed, this was budding. We discussed about budding and fragmentation also. Okay, so to note these methods, you have to observe the first video lecture. Now in this video lecture we are going to discuss, if suppose plant is not having flower, or if you want to make plant reproduce in a season where plant is not going to produce flower, mean to say कि अगर आप चाहते हो कि प्लांट रिप्रोड्यूस करे बट उसका रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं है, जैसे you know that फ्लावर्स के बाद ही फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आएंगे फिर फ्रूट्स आएंगे. सो you get mangoes only in समर सीजन, मतलब उससे थोड़ा पहले फ्लावर्स आए होंगे ट्रीज पे. आर यू गेटिंग? सो दीज फ्रूट्स, मैंगोज, आर सीजनल फ्रूट्स. बट सपोज if the mango tree want to reproduce in winters or in rainy season, okay, then what? It is not producing flowers in winter season, okay, or in rainy season. The flowers are not produced in the on the mango trees. Then I'm not specifically talking about mango, because mango trees cannot would not be able to grow with vegetative reproduction. Okay, in this we won't be discussing कि भाई mango tree में vegetative reproduction कैसे होता है. Just I'm making you give an idea कि अगर सपोज कि अगर मैं मैंगो ट्री की बात कर रही हूँ, तो मैंगो ट्री पे फ्रूट कब दिखते हैं? तो समर सीजन में. देन एंड देन ओनली यू कैन एंजॉय द मैंगोस इन समर सीजन, है ना. बट व्हेन आई से ऐसे कई होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो विंटर सीजन में ही फ्लावर देते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो समर सीजन में फ्लावर देते हैं. कहने का मतलब ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, या तो मैं स्टेम की, या तो रूट की, या लीव्स की मदद लेके प्लांट को ग्रो करा रही हूँ. ठीक है, मतलब मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूज नहीं कर रही हूँ प्लांट के. आई एम यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टू मेक इट रिप्रोड्यूस. Okay, so the specific or the main aim of vegetative reproduction is what? Is that new plants produced from the vegetative parts without the help of any reproductive organs. Getting? Next, when I say stem tuber,
okay, is one of the part, vegetative part which helps in vegetative reproduction. See, what is actually stem tuber? So it is underground specifically. When I say stem tuber, you might be thinking how come underground? Stem is a aerial part जो हवा में है, जो ग्राउंड के ऊपर है. तो stem is the aerial part of plant. Then how come can I say stem tuber as underground? Are you getting? So when I say stem tuber underground में होता है, लेकिन क्या है वो एक swollen part of stem है. ये stem tuber एक ऐसी stem है, part of stem है जो आपको underground मिलेगा, साथ ही वो swollen होता है. अच्छा, swollen part of stem क्यों है? That stores food. ओके, तो वो swollen part है, उसमें फूड स्टोर है और वो अंडरग्राउंड में, मतलब ग्राउंड के नीचे मिलता है ऑब्वियसली. सो दिस इज स्टेम ट्यूबर. स्टेम ट्यूबर समझ आ गया? एग्जांपल देखते हैं. जैसे पोटैटो. पोटैटो देखा, पोटैटो कैसा होता है? swollen. इट इज एक्चुअली द स्टेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. अब ऐसा swollen तुम्हें स्ट्रॉबेरी में नहीं मिलेगा या तुम्हें और कोई प्लांट में नहीं मिलेगा, बट पोटैटो में ऐसा मिलता है. सो जो पोटैटो है that is vegetable, we can say vegetable. Why? Because it is a vegetative part. Vegetative part मतलब वो स्टेम्प का पार्ट है. लेकिन ये पोटैटो ऐसी स्टेम्प है, ये पोटैटो ऐसी स्टेम्प है जो अंडरग्राउंड मिलती है. मतलब वो प्लांट की स्टेम्प तो है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन वो जब ग्राउंड के नीचे जाती है, मान लो दिस इज योर स्टेम्प, ठीक है, वो पोटैटो प्लांट कुछ ऐसा दिखता है. इधर इसकी लीव्स होती है, ठीक है, एंड सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल. सो नीचे इसके रूट्स के साथ साथ तुम्हें ऐसे पोटैटोस अटैच्ड मिलेंगे. ये रूट्स भी है और ऐसे पोटैटो अटैच मिलेंगे. तो अब तुम क्या सोचोगे कि रूट्स के साथ जो मुझे दिख रहा है ये पोर्शन, दैट इज रूट, दैट इज अ पार्ट ऑफ रूट, कि रूट जो है वो स्वेलन हो गई. नो, यहाँ पे क्या है, ये स्टेम्प का ही एक्सटेंशन है. ठीक है, ये स्टेम्प ही है, ये दिस पोर्शन इज स्टेम्प बट इट इज अंडरग्राउंड स्टेम्प. ठीक है, ये ऐसी स्टेम्प है जो ग्रीन नहीं है ना, ब्राउन है. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. तुम कहोगे कि मैम श्रब्स में और ट्रीज में भी ब्राउन है, बट द थिंग इज इट इज फाउंड अंडरग्राउंड. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज swollen. व्हाई इट इज swollen? स्टोरिंग फूड. क्लियर? सो व्हेन आई ever talk about stem tuber, you think first and then answer that since it is a stem tuber, okay, it would be found underground. Okay, it is swollen part, okay, which is swollen and is a is a part of stem only. It is a stem. So you can say that swollen part of stem that stores food. Okay, why it is swollen? Because storing food, and is found underground. What is the example? Potato. Okay, what about how come you can use the stem tuber, that is potato, to grow a new plant? चलो हमें वो पता चल गया भाई स्टेम ट्यूबर क्या है. ठीक है, अब ये स्टेम ट्यूबर से मैं नया प्लांट कैसे ग्रो करूं? हाउ कम? सो अगेन व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू हैव ऑब्जर्व पोटैटो केयरफुली, यू कैन ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस इन देम. ऐसा कुछ देखा? सो दीज आर नथिंग but are known as eyes, है ना. हम eyes of potato बोलते हैं, but basically they are buds. Okay, जैसे तुम्हें पता है हमने 6th में ऐसा पढ़ा था कि स्टेम पे buds आते हैं. अब buds दो तरह के होते हैं. एक bud ऐसा होता है जो leaves और other parts यानी stem को ग्रो करता है. एक bud ऐसा आता है जिससे flowers ग्रो होते हैं. दो तरह के बड्स आते हैं प्लांट में. ठीक है, एक होती है फ्लावर की कली, है ना, कली बोलते हैं, जिसमें से नया फ्लावर ग्रो होगा. इसके अलावा दूसरे भी बड्स होते हैं जिसमें से या तो लीव्स ग्रो होंगी या स्टेम्प ग्रो होंगी. तो ऐसे बड्स मुझे स्टेम्प पे मिलते हैं, लेकिन ऐसे बड्स हमें पोटैटो में भी मिलते हैं. ये बड्स अगर ये मैं पोटैटो का बड रीजन या ये थोड़ा सा पोटैटो कट करके सॉइल में ग्रो कराने की कोशिश करती हूँ, अगर उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा खासा मैं न्यूट्रिशन देती हूँ, ठीक है, उसको पानी देती हूँ, सो देयर माइट बी चांसेस दैट दिस बर्ड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट. मतलब क्या, ये स्टेम ट्यूबर का फायदा क्या है? ये स्टेम ट्यूबर मुझे समझ आ गया, इससे प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है. तो स्टेम ट्यूबर पे जो बड्स होते हैं, स्मॉल बड्स विच यू आर एबल टू ऑब्जर्व, ओके,
from that you are able to grow a new plant of potato. अभी next time तुम जब भी kitchen में जाओ, so you first observe one of the potato. Observe that if you are able to see any eye or any bud, ठीक है, उसको eye हम layman language में बोलते हैं, but if we want to use a scientific term for eye of potato, ठीक है, basically ऐसी eye नहीं है जो blink करेगी potato की, but we can say eye. But in scientific term, what we can say, they are the buds of potato. That is the stem tuber. I hope it is clear. Moving down to next, vegetative part, which is responsible for vegetative reproduction. That is what parts of underground stem. अब ऐसी भी स्टेम्स होती है, ठीक है, उसके पार्ट्स, कोई भी पार्ट ले लो अंडरग्राउंड स्टेम में, अगर कोई एक पार्ट है उससे अगर यू कैन कलेक्ट दैट. फॉर एग्जांपल जिंजर जो है उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक बोला नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ पार्ट्स है ना, अगर हम उसे ले लें, जैसे हम जिंजर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, तो अंडरग्राउंड में विच एवर पार्ट इफ यू आर टेकिंग, दैट इज स्पेसिफिकली जिंजर. तुमने जिंजर देखी है, दैट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ स्टेम. ओके, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसका पार्ट अगर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल जिंजर, वो जिंजर को आप सॉइल में डालो, अच्छा सा न्यूट्रिशन वगैरह, वाटर वगैरह दो, यानी अच्छी कंडीशंस दो, सुटेबल एनवायरनमेंट दो. ओके, देन यू वुड बी एबल टू ग्रो अ न्यू प्लांट ऑफ जिंजर. ठीक है, तो जिंजर जो है वो कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट है, ठीक है, वो कुछ एक अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है जिंजर. ये जिंजर को अगर तुम कलेक्ट करो और इसको नए सॉइल में इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इट ग्रो under suitable conditions, then it might give you a new plant of ginger. Okay, moving down to next, bulbs. Okay, what are bulbs? Again, these are underground stem but with thick leaves. तो मैं एग्जाम्पल पहले लूंगी और फिर इस पे आते हैं कि बल्ब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक ऑनियन, सबने देखा ऑनियन. आई होप you all have seen onions. When I talk about onions, what would you observe? If you cut, you may observe some leaves. Leaves मतलब कैसे? Leaves तो green कलर की होती है, but potato में ये एक बीच में कुछ होता है और इसके आसपास you would be observing layers on layers, layers on layers, layers on layers. Are you able to observe that? That are nothing but leaves. That are nothing but leaves. Okay, and when the stem, this is the stem. थोड़ा सा और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो यू वुड बी गेटिंग द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द सेंटर पोर्शन, व्हाट इट इज नोन एज. ठीक है, उसका लेबलिंग वगैरह सब पढ़ोगे, बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज अबाउट बल्ब. क्या होता है बल्ब? अंडरग्राउंड स्टेम होता है. दैट मीन्स व्हाट? ऑनियन इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर मिलता है ना, अंडर या ग्राउंड के नीचे. ग्राउंड के नीचे इन द सेंस ग्राउंड लेवल के नीचे. Apart from this, it is a stem with thick leaves. देखो आप leaves का thickness देखना, जो वो तुम निकालते हो वो लेयर, एक एक लेयर का thickness, it is quite thick. तो इसलिए thick leaves. Okay, so underground stem with thick leaves is onion. Okay, apart from onion, अगर तुम लिली या ट्यूलिप के bulbs देखोगे, that too also is having stem with thick leaves. और this is found underground. Remember. So next time if you are having the bulb of onion, okay, you check that is it having leaves, how many number of leaves are there, है ना, मतलब वो उसका लेयर पे लेयर आते जाते हैं. that forms a collectively bulb. okay, so onion का bulb होता है, लिली, ट्यूलिप, तो ये bulbs को भी again you can use this bulb to grow a new plant. bulb actually क्या है? leaf और stem का combination. that means what? vegetative part. अगर आप वेजिटेटिव पार्ट से एक प्लांट को ग्रो कर सकते हो, दैट मीन्स व्हाट? दैट इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्लियर? मूविंग डाउन टू नेक्स्ट, बड्स ऑफ साइड शूट्स. अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स में एक शूट नहीं होता. ओके, कहने का मतलब ये है, जब मैं शूट बोलती हूँ एक मेन होता है और साइड्स में होते हैं. जैसे अगर मैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट कंसीडर करती हूँ, सो इसके ऐसे साइड शूट्स है, ये साइड शूट है. ठीक है, अब ये जो शूट है, मैंने कहा था स्टेम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? बड्स प्रेजेंट. दीज आर नॉट लीव्स बट बड्स. ओके,
मान लो किसी तरह से मैं ये शूट को ऐसा पकड़ के, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज ग्रीन, तो आप क्या इसको ऐसे पकड़ के इसको बेंड कर सकते हो। सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, मैंने इसको पकड़ के ऐसे बेंड किया मतलब इसको ऐसे टिल्ट कर दिया सच दैट इट टचेस द ग्राउंड। सो मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिया, तो यहाँ पे जो बड्स थे वो बड्स कहाँ पे आ गए, सॉइल के कांटेक्ट में आ गए। तो जो बड है इसको सॉइल का कांटेक्ट मिल गया, क्या हुआ, एज अ रिजल्ट दिस बड स्टार्ट्स डेवलपिंग रूट, दिस बड स्टार्ट्स डेवलपिंग प्लांट दैट इज शूट। तो देखो मैंने इसके साइड शूट से, साइड वाला शूट है ना, साइड शूट से मैंने क्या कर दिया, न्यू प्लांट्स ग्रो करवा दिया। और फिर जब ऐसा लगता है कि ये देखो पहले इतना होगा, तो लगता है कि अच्छा अभी ये काफी बड़ा हो चुका है, अब इसे हम है ना, मतलब ये अभी और बड़ा होगा, सो वी कट दिस, मतलब पेरेंट से इसका कांटेक्ट तोड़ देते हैं। सो दिस इज नथिंग, ओके, दिस इज नथिंग बट व्हाट, यू नो, ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ स्टेम, है ना, स्टेम भी हुआ ना एक तरीके का। सो सपोज अगर मैंने इधर की भी साइड शूट ले ली, मैंने क्या बोला कि शूट के पास ऐसे बड्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स में, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस। तो इनका क्या करते हैं, इनको ऐसे पकड़ के दिखता है कि इसमें बड्स हैं, तो इसको पकड़ के ग्राउंड के कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। तो क्या किया, मैंने इसको बेंड किया, ऐसे बेंड किया कि जो बड्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए। जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आता है, अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है, यानी अगर उसको अच्छा अच्छा पानी, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो क्या होगा, इट विल डेवलप रूट एंड शूट। और फिर जब लगता है कि अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, इट कैन डेवलप ऑन इट्स ओन, सो वी ब्रेक दिस from break the contact of this plant from the parent plant. Are you getting? So this is how plant can grow. Okay, plant can you can grow new plants from the parent plant by vegetative reproduction. इसमें कोई आपने फ्लावर यूज किया, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूज किया नहीं, so therefore it is vegetative reproduction because you are using stem, है ना, stem for reproduction. Clear? Okay, moving down to next, buds on leaf margins. Okay, buds on leaf margins, यानी ऐसे plant, suppose Bryophyllum is the best example of this. Bryophyllum एक ऐसा plant है जिसकी leaves में, leaves के margins, do you understand margins? Border, लीफ के मार्जिन पे तुम्हें क्या मिलता है, यू आर एबल टू फाइंड बड्स। दिस बर्ड्स आर एबल टू, अगर देखो मान लो ये प्लांट है ब्रायोफाइलम का, ये उसका लीफ है, लीफ कंटेनिंग बड्स। इफ यू प्लक दिस लीफ एंड इफ यू मेक दिस लीव्स कम इन कांटेक्ट विथ सॉइल, तो अल्टीमेटली जो उसके मार्जिन पे बड्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, फिर यही होगा, बड विल डेवलप रूट एंड शूट। आर यू गेटिंग? सेम चीज, हमें सिर्फ क्या करना है, ये बड जो एरियल पार्ट में, जो ग्राउंड के ऊपर है, उसको हमें सॉइल के कांटेक्ट में लाना है। जैसे ही हमने सॉइल के कांटेक्ट में लाया, इट विल लीड इन द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड शूट, अल्टीमेटली अ न्यू प्लांट ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है कि जैसे ब्रायोफाइलम जो प्लांट है, उसके हम जो बड्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, बड्स ऑन लीफ मार्जिन्स, ठीक है, लीफ मार्जिन पे हमें बड मिलते हैं। तो हमें कैसे ना कैसे करके ये बड्स को सॉइल के कांटेक्ट में लाना है। जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, दिस बड विल बी डेवलपिंग रूट्स एज वेल एज शूट्स। गेटिंग? सो दिस इज नथिंग बट अगेन a part or a type of vegetative reproduction. Clear? Next, when I talk about next is pieces of swollen root. Pieces of swollen root, that means what, कि swollen roots, जैसे अभी हमने stem tuber की बात की अभी थोड़ी देर पहले. Are you able to recall what are stem tubers? Stem tubers are the underground stem which are swollen. Why? Because they store food. Plants जो है वो food store करते हैं उस stem में,
ठीक है, प्लांट्स अपने लिए फूड स्टोर करते हैं, हमारे लिए नहीं, फिर भी हम प्लक करके उसको आराम से खाते हैं. नो प्रॉब्लम, लेट अस फोकस ऑन दिस. सो व्हाट आई वाज सेइंग, दैट स्टेम ट्यूबर is a underground stem swollen part, okay, which is swollen. Why? Because it stores food. Clear? Now when I talk about ऐसे भी कुछ plants होते हैं, ठीक है, जिनकी roots में you would be getting swollen roots. For example, sweet potato. Sweet potato की roots जो होती है वो swollen होती है. जो swollen roots है उसी को हम sweet potato बोलते हैं. ठीक है, उसी को हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं. देखो तुमने स्वीट पोटैटो देखा होगा, इट इज सम काइंड ऑफ लॉन्ग एंड swollen. व्हाई? बिकॉज द प्लांट हैज स्टोर्ड फूड इन दैट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रूट, जबकि स्टेम ट्यूबर वाज अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. हियर स्वीट पोटैटो इज अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रूट. ये कहने की जरूरत है नहीं, यूजुअली रूट इज अंडरग्राउंड, है ना. सो रूट जो है वो थिक है, ठीक है, कुछ थिक होगी, कुछ फाइबरस भी होगी, है ना. फाइबरस रूट्स, टैप रूट्स. आर यू एबल टू रिकॉल? यस. सो स्वीट पोटैटो possesses fibrous roots also, but the roots which get swollen, जो फूल जाती है ना, swell हो जाती हैं, that means they are storing food. Now if you pluck the sweet potato and you sow in soil, give them sufficient amount of water and nutrients, and if you are if it is getting suitable environment, then ultimately this sweet potato is responsible for growing a new plant. Are you getting? Okay. So pieces of swollen root क्यों बोला? ये जो swollen root है इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ के तुम सॉइल में डाल दो, अल्टीमेटली यू वुड बी गेटिंग व्हाट? न्यू प्लांट. नेक्स्ट इज शूट्स ऑफ पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट जैसे मनी प्लांट. मनी प्लांट सबने देखा है, ओके. इफ नॉट, नो प्रॉब्लम, यू कैन गूगल इट, क्योंकि अभी गूगल का यू कैन से इट इज द एरा ऑफ गूगल. सो व्हाट यू कैन से कि मनी प्लांट जो है, मान लो इट इज अ क्लाइंबर. तो ये जो मनी प्लांट है, ठीक है, तो इसका अगर तुम शूट ले लेते हो, ठीक है, एक पोर्शन है उसको कट कर दो और वो पोर्शन को तुम सॉइल में सो कर दो, तो इट विल अल्टीमेटली ग्रो अगेन इनटू अ न्यू प्लांट. आर यू गेटिंग? हाँ. सो शूट को तुम्हें मनी प्लांट के शूट को कट करना है एंड यू हैव टू सो इन सॉइल. ओके. Again, if this this part of shoot, देखो ये parent plant हुआ ना, जिसमें से तुम shoot ले रहे हो, that is parent plant, है ना. So you take this shoot and try to sow in soil. Ultimately, what you would be getting is a new money plant if it gets suitable environment, है ना. Okay. So I think this was clear. This was quite easy to understand. Next. Cones. Cones are the part of stems. Again, this stem is aerial. This is not underground. ये ऐसी स्टेम होती है जो शॉर्ट होती है और swollen होती है. किसमें फाउंड आउट होती है? ग्लैडियोलस. ग्लैडियोलस एक प्लांट है जिसमें तुम्हें जो स्टेम मिलेगी, कुछ स्टेम्स शॉर्ट होती है और swollen होती है. क्यों swollen? अगेन टू स्टोर फूड. अगर तुम ये स्टेम को कलेक्ट करते हो और फिर से सॉइल में सो करते हो, यू वुड बी गेटिंग अ न्यू प्लांट. So that short swollen stem, when you collect that and try to grow a new plant, that collection of that stem, ठीक है, वो stem जो तुमने collect किया, that stem is nothing but known as corms. CORMS, corms. Clear? So यहाँ पे हमने 7 vegetative parts पढ़े, जिसमें से you can do, I mean that particular plant can do what? Vegetative reproduction. Okay, so can we make a table out of this? ठीक है, टेबल तुम बनाओगे. I am showing you how can you make. ठीक है, जैसे तुम पहले यहाँ पे लिखोगे vegetative part. फिर तुम क्या लिखोगे? लोकेशन. तुम क्या लिखोगे? लोकेशन. और फिर क्या लिखोगे?
examples. So you know कैसे? तो चलो पहला वेजिटेटिव पार्ट हमने किससे स्टार्ट किया? स्टेम ट्यूबर. राइट डाउन हियर स्टेम ट्यूबर. अगर तुम्हें याद नहीं रहता स्टेम ट्यूबर क्या है तो इसी के नीचे लिख दो अंडरग्राउंड swollen stem. Underground swollen stem. Getting? Yeah, swollen underground stem. That would be more better. Swollen underground stem. Stem tuber. Why it is swollen? Storing food. That तो you know अभी याद हो गया होगा. ठीक है. Next location कहाँ है? Underground. Location कहाँ है? Underground. Examples क्या है? Potato. ठीक है. So here we can also mention buds. You can also mention buds. तो अगर सिर्फ तुम stem tuber लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिख दो buds. This stem tuber on its surface contains buds and these buds are responsible for growing new plant. समझ आया? इस तरह से लिखना. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. कैसे? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेम. स्टेम लोकेशन क्या है? अंडरग्राउंड. एग्जाम्पल क्या है? जिंजर. नेक्स्ट बल्ब्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है? बल्ब्स. अगेन व्हाट आर बल्ब्स? दे आर द, यहाँ पे हम लोकेशन में तो लिख रहे हैं अंडरग्राउंड है, बट टू डिफाइन बल्ब इट इज द underground stem. It is the underground stem with thick leaves. So this is the way how you can proceed. मैंने कहा मैं पूरा टेबल नहीं बनवाऊंगी. Now you proceed on your own. जैसे अभी तुमने यहाँ पे लिखा buds of side shoots. तो वेजिटेटिव पार्ट इसमें क्या है? लिखो साइड शूट्स और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बड्स. तो जो साइड शूट्स पे जो बड्स व्हिच यू आर एबल टू ऑब्जर्व, लोकेशन क्या है? तो लिखोगे अबव ग्राउंड या यू कैन राइट एरियल, व्हाटएवर यू लाइक. एग्जांपल्स स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस. ओके. नेक्स्ट क्या लिखोगे? बड्स ऑन लीफ मार्जिन. ऐसा लिखने के बजाय यू कैन राइट लीफ. वेजिटेटिव पार्ट क्या है? लीफ. और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बड्स. ऐसे बर्ड्स जो लीफ मार्जिन्स पे, फोकस ऑन मार्जिन्स. ठीक है. अगेन व्हाट इज द लोकेशन? एरियल. हवा में मिलते हैं, है ना? हवा में इन द सेंस अबव ग्राउंड. ओके. व्हाट एल्स? एग्जांपल क्या है? दैट इज ब्रायोफाइलम. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन आई टॉक अबाउट पीसेस ऑफ स्वॉलन रूट्स, अगेन रूट्स. सो तो वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाएगा स्वॉलन रूट और लोकेशन में आ जाएगा अंडरग्राउंड. एग्जाम्पल में आ जाएगा स्वीट पोटैटो. नेक्स्ट इज शूट. राइट डाउन शूट. यहाँ पे क्या लिखोगे? लोकेशन. अगेन एरियल. एग्जाम्पल क्या है? मनी प्लांट. ओके. व्हाट एल्स? लास्टली वी स्टडीड कॉर्न्स. सो यू राइट डाउन शॉर्ट स्वॉलन स्टेम. ब्रैकेट में लिखो कॉर्न्स. एग्जाम्पल क्या था उसका? ग्लैडियोलस. और लोकेशन क्या है? अबव द ग्राउंड. इस तरह से यू कैन मेक द टेबल. अगर मैंने जल्दी बोला यू कैन रिवाइंड द वीडियो, चेक दिस आउट. ओके. पहले लिख दो खुद से इसको देख के एंड देन यू चेक इट आउट. आर इज योर टेबल इज मैचिंग विथ माई what I said about these things. Okay. See that if you forgot to mention some important words or terms while making this table. Clear? Okay. Next, when I talk about meristematic tissue, ये नया term है. Now see, meristematic tissue, you are in class 7th right now. Yes. So ये टिश्यू को आप कब पढ़ोगे? ये टिश्यू अब जब नेक्स्ट जब आएगा that would be in class 9th. क्लास 9th में इसके बारे में बहुत सारा we would be explaining you. The thing is, यहाँ पे I am trying my best to explain you. I do not know why they have provided this term in textbook right now at this stage. Okay, but then too also I would be trying my best. Now see,
first of all, let us understand what is tissue. Okay, so have you studied something known as cellular organization? That means to make an organism, the smallest unit are cells. ठीक है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स को मैं कलेक्ट करके उनका ग्रुप बनाती हूँ, अल्टीमेटली आई गेट टिश्यूज। आर यू एबल टू रिकॉल? फिर बहुत सारे टिश्यूज को जब मैं जोड़ती हूँ एंड आई फॉर्म अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, आई गेट ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स को ग्रुप करती हूँ, सो आई गेट ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में आ जाते हैं, then ultimately it forms organism। तो ये तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है। Right now I am talking about tissues। प्लांट में टिश्यूज होते हैं। जैसे अभी अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मतलब क्या, मेरे में ऑर्गन सिस्टम भी होंगे, बहुत सारे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जब कोऑर्डिनेटली एक साथ फंक्शन करते हैं, अल्टीमेटली फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म, है ना। अच्छा खासा ऑर्गेनिज्म तुम्हारे सामने खड़ा है। इज अ बेस्ट एग्जांपल, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन से बना है। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक heart or let us take circulatory system as an example। circulatory system, जब भी circulatory के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हार्ट। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हार्ट। एंड हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन। ठीक है, हार्ट के अलावा यू कैन सी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, है ना, पढ़ा है ना, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, है ना। बाल, तुम्हारा जितना बाल जितना थिकनेस वाला भी वेसल है, बाल जितना थिकनेस में, यू नो, यू आर मेकिंग द ब्लड फ्लो, मतलब इतना थिन, यू नो, सो दैट इज कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ओके, सो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, है ना। सो दैट इज, है ना, यू माइट बी थिंकिंग मैम प्लांट्स में कहाँ ये बायोलॉजी इन द सेंस कि मैम प्लांट्स में कहाँ एनिमल्स हार्ट वगैरह ला रही, यू नो, आई एम मेकिंग दिस concept correlate with this। So where I was discussing about organ system, circulatory system, wherein you get organs such as heart। अब ये organ जो heart है वो कैसे बना होगा? टिश्यूज से। मतलब ये टिश्यूज का स्पेसिफिक नाम होता है, जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। फॉर योर ईज आई वुड बी टॉकिंग हार्ट टिश्यू। तो हार्ट में जो टिश्यूज हैं वो साथ में जुड़ते हैं, तो दे फॉर्म ऑर्गन हार्ट। तो अभी के लिए मैं बोलूँ हार्ट टिश्यूज। ऐसे ही तुम दूसरा सोचो, क्या हम बोल सकते हैं नर्वस टिश्यूज, है ना। क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी टिश्यूज। आर यू गेटिंग? मतलब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट टिश्यूज। सिमिलरली टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन प्लांट्स के पास भी अलग अलग टिश्यूज होते हैं। दो मेन टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, जैसे हमारे में अलग अलग टिश्यूज है। मेन जो दो टिश्यूज हमें प्लांट्स में मिलते हैं, आई होप यू आर एबल टू यू नो कोरिलेट दिस। तो प्लांट में जो दो टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, एंड परमानेंट टिश्यू। Right now we would be focusing more on meristematic tissue। क्या डिफरेंस है इन दोनों टिश्यूज में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन्स सेल। हमने कहा था ना, टिश्यूज किससे बना हुआ होता है? सेल्स से। मेरिस्टेमेटिक कंटेन्स सेल्स which can divide, but when I talk about permanent tissues, this tissue contains cells which cannot divide, which
कैन नॉट डिवाइड। कहने का मतलब ये 3 बार मैंने इसलिए बोला, दैट मीन्स यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, that is meristematic and permanent tissue. Okay, so you know when I say that, जैसे अभी मैं बोलूं कि क्या हार्ट टिश्यू जो है, हाँ, वो तुम्हें हार्ट में ही मिलेगा ना, कहीं और मिलेगा? कभी देखा हार्ट टिश्यू ब्रेन में मिल रहा है? कभी देखा हार्ट टिश्यू तुम्हारे हाथ पे यहाँ पे मिल रहा है? नो, हार्ट टिश्यू है तो हार्ट में ही मिलेगा ऑब्वियसली। सिमिलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे मिल सकते हैं? देखो उसका काम क्या है, देखो टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि जहां पे उसका काम है ना। लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जिसको जैसा काम आता है वैसे यू नो दे आर अप्लाइंग फॉर जॉब। यू हैव एवर सीन एनी सिंगर डांसिंग, ठीक है, वो ऑडिटोरियम में जाके डांस कर रहा है, कभी ऐसा देखा क्या? नहीं, फंक्शन के अकॉर्डिंग यू नो दे मूव टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सिमिलरली टिश्यू का जो काम है वो वही मिलेगा ना, जिस पोर्शन में उसका काम है उस पोर्शन ऑफ बॉडी में इट वुड बी देयर, है ना। सिमिलरली जब अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। क्या समझ पड़ता है कि ये टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। समझ आ रहा है? परमानेंट टिश्यू में अभी नहीं बताऊंगी, वो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन उसके दूसरे काम होते हैं। एज आई सेड, दिस वुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन क्लास 9th, ठीक है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस इज अ टिश्यू containing cells which can divide. It is a specific tissue which can divide. कहाँ पे मिलेगा? जहां उसका काम आएगा। अब ग्रोथ कैसे करेगा भाई? डिवाइड तो कर रहा है लेकिन ग्रोथ कैसे करेगा? तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बलून। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ अ बलून, ठीक है। तुमने एक इन्फ्लेटेड बलून लिया। इन्फ्लेटेड मतलब अभी बलून फुलाया नहीं है, ठीक है, उसमें हवा नहीं भरी है। यू हैव नॉट फिल्ड एयर इन बलून। इट वुड बी अपीयरिंग समथिंग लाइक दिस, बट सपोज एयर नहीं, कुछ भी नहीं। नाउ यू ट्राई टू एड few drops of water. अगर कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालते हो, कुछ ड्रॉप्स यानी अच्छा खासा थोड़ा सा पानी डालते हो, यू वुड बी ऑब्जर्विंग सम स्वेलिंग इन द बलून, है ना। अब और ज्यादा पानी डालो, so you would be observing something like this, है ना। मतलब क्या है, क्या बलून का साइज इंक्रीज हो रहा है? जैसे मैं पानी का अमाउंट भरा रही हूँ, जैसे वाटर के ड्रॉप्स बढ़ रहे हैं बलून के अंदर, वैसे वैसे बलून का साइज क्या है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो मान लो अगर ये एक सेल है, ये डिवाइड करता है इनटू 2। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समथिंग नोन एज फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को 2 में डिवाइड कर देता है, समथिंग जस्ट लाइक दिस, है ना। कि यहाँ पे ये सेल है, सेल डिवाइड होता है तो 2 सेल्स और आते हैं। ये सेल फिर 2 में डिवाइड होगा, ये सेल फिर 2 में डिवाइड होगा, फिर ये सेल फिर से 2 में। देखो, वी स्टार्टेड विथ 1 and now we have reached to how many number of cells? See, 1 2 3 4 5 6 7 8 cells, है ना। और ये डिवीजन बहुत फास्ट होता है, ये डिवीजन बहुत फास्ट होता है। सो यू ऑब्जर्व दिस, ये जो सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे डिवाइड कर रहे हैं यानी दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर। मान लो ये एक सेल में अंदर डालती हूँ, इसको अच्छा खासा मैं खाना देती हूँ, तो ये क्या करेगा? पहले खाएगा, ग्रो होगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब अपने आप को डिवाइड करेगा इंटू 2। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा, है ना। सो ये इसके अंदर से इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। व्हाट यू आर गेटिंग अल्टीमेटली इज कि साइज ग्रो होगा ना। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब क्या कि प्लांट का साइज इंक्रीज हो रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ऐसा पावर है कि वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर सकती है। यू सी हियर, सेल्स ऑफ ओनली स्पेसिफिक टिश्यू कैन डिवाइड। भाई इसी के पास ऐसी पावर है जो उसके पास ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और प्लांट को ग्रो कर सकते हैं।
आर यू गेटिंग? तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम, इसलिए ग्रोइंग टिप्स और ऑफ शूट्स एंड रूट्स पे मिलती है, क्योंकि क्या शूट जो है वो लेंथ बढ़ाएगा प्लांट का, रूट के टिप्स पे जो हमें सेल्स मिलेंगे वो लेंथ बढ़ाएगा रूट्स का। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो इसमें तुमको यही देखना है कि कैसे ग्रोथ से, मतलब नंबर ऑफ सेल का डिवीजन ग्रोथ से कैसे रिलेटेड। अरे भाई जितना ज्यादा डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, है ना। सो दीज आर फाउंड ऑन ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट एंड रूट and these cells can divide and therefore the tissue which contains the cells which can divide, क्या बोला मैंने, tissues which contains cells which can divide are nothing but known as meristematic tissue। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, यही फिर 9th में फिर से आएगा। सो अगर अभी समझ आ गया so it will be easy to grasp that topic in class 9। क्लियर? ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो आर्टिफिशियल मेथड्स, अब अभी तुमने कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी देखे होंगे जो पहले सीजनल थे और अभी रोज देखने को मिलते हैं, है ना। देयर आर सम फ्रूट्स which were to be found in seasonal, मतलब सीजन में ही आते थे, एक्सेप्ट मैंगोस। ठीक है, मैंगोस अभी भी समर में ही आते हैं, बट देयर आर सम फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स जो सीजन में आते थे लेकिन अब बिना सीजन पे यू कैन गेट इट, है ना, आइदर बाय प्रिजर्वेशन या बाय दीज आर्टिफिशियल मेथड्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस ऑफ ह्यूमंस, है ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या हो रहा है, नीड इंक्रीज हो रही है, हमारे एक्सपेक्टेशन है। क्यों? वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगी वी आर फाइंडिंग सम वेज कि हमें पूरे साल वो फ्रूट खाने को मिले, है ना। जो फ्रूट पूरे साल नहीं मिलता देन टू ऑल्सो वी नीड टू ईट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फॉलो दिस आर्टिफिशियल मेथड्स। यानी अगर एक प्लांट में क्या है, फ्लावर्स तो सीजनली आते हैं ना, बट इफ आई यूज वेजिटेटिव पार्ट्स टू ग्रो फ्रूट्स, जैसे इफ यू सी सम लेमन्स के अंदर सीड्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लेमन्स हैं जब तुम उसको कट करोगे यू वोंट बी गेटिंग सीड्स, दैट आर हाइब्रिड। और ये जो हाइब्रिड क्या होता है, दैट यू वुड बी स्टडीइंग इन हायर स्टैंडर्ड्स। राइट नाउ व्हाट आई वांट टू फोकस इज, क्योंकि अभी हाइब्रिड चालू करेंगे तो इट वुड लीड टू अनदर टॉपिक। सो अभी के लिए समझ सकते हो कि दीज आर समथिंग, तुमने ऐसा कभी सुना हो जैसे बोलते हैं इंजेक्शन वाले फ्रूट्स, इंजेक्शन वाले वेजिटेबल्स, दैट इज नथिंग बट वी आर यूजिंग सम आर्टिफिशियल मेथड्स टू डेवलप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, फ्रॉम प्लांट बोल रहा है कि भाई अभी मेरा टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करो, लेकिन ह्यूमंस आर इम्पेशेंट, उनको वेट नहीं करना है ना, दे वांट द फ्रूट राइट नाउ। व्हाट वी कैन डू, दिस इज नॉट द करेक्ट सीजन, देन टू ऑल्सो वी आर फोर्सिंग द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। हाउ कम? बाय यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। देखो आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या आता है, सबसे पहला आता है मतलब ग्रोइंग न्यू प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। पहले ये समझ लेते हैं कि अगर मैं न्यू प्लांट्स को ग्रो करा रही हूँ बाय आर्टिफिशियल मेथड्स तो मैं उसे बोलती हूँ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। ये प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, यानी मैं आर्टिफिशियली, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, मैं आर्टिफिशियली प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ। वो मेथड्स क्या है जिससे मैं न्यू प्लांट ग्रो कर सकती हूँ विदाउट सीजन। दैट इज फर्स्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर, इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बट इट अकर्स ऑन अ स्मॉल स्केल। Details regarding which you will be studying in first chapter of class 8th. Class 8th में first chapter is something regarding crop production. So उसमें you will be studying very nicely कि भाई agriculture क्या होता है, how horticulture is different from agriculture. So basically horticulture में भी हम fruits और vegetables grow करते हैं but on a small scale, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग जो है वो हॉर्टिकल्चर में यूज की जाती है, एग्रीकल्चर में नहीं। ज्यादातर, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर में नहीं, लेकिन ज्यादातर
हॉर्टिकल्चर में यूज की जाती है। ज्यादातर स्मॉल स्केल में वी कैन यूज दिस आर्टिफिशियल मेथड। चलो ये पता चल गया कहाँ यूज होती है, पर क्या है, सी डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स की न्यू वेराइटीज। अब वेराइटीज क्या है, जैसे यू नो मोस्ट ऑफ यू वुड बी फाउंड ऑफ डॉग्स। तुम लोग को डॉग्स बहुत अच्छे लगते होंगे, किसी के पास पेट्स होंगे। इफ नॉट डॉग्स चलो कैट्स, इफ नॉट कैट्स चलो यू कैन टेक बर्ड्स। So these are the common pets, you know, which people like to make, pet, common animals like dogs, cats, birds, है ना, ये ज्यादातर होता है। अब तुम देखो जैसे अभी जो तुम्हारे घर पे suppose if you are having small pet dog, so there might be chances कि तुम्हारे घर पे जो dog है that is different and the dog which I am having is different। कैसे different? Dog तो dog है, no, there are different breeds, you know the breeds। हाँ कि भाई ये लेब्रेटर हो गया, ठीक है, फिर आई डू नॉट नो बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ ब्रीड्स, बट देयर आर सेवरल ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, है ना, मुझे सिर्फ ये एक दो पता है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग, ठीक है, अलग अलग आता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कैट्स में भी अलग अलग ब्रीड्स होती है। ब्रीड्स में फिर उनका है ना फेस स्ट्रक्चर अलग होगा, कोई हाइटेड होगी, कोई शॉर्ट होगी, कोई फैट होगी, कोई थिन होगी, ऐसे सब अलग अलग ब्रीड्स मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे यू कैन सी ब्रीड्स इन कैट्स, इन बर्ड्स, बर्ड्स में भी अलग अलग होते हैं, पैरेट्स इटसेल्फ में उसमें भी इतने सारे स्पीसीज हैं, स्पीसीज इन द सेंस इतने सारे ब्रीड्स है। कहने का मतलब ये है व्हेन आई टॉक अबाउट प्लांट्स में हम ब्रीड्स ना यूज करके क्या यूज करते हैं, वेराइटीज। अगर मुझे डिफरेंट प्लांट, जैसे अभी तुमने फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट कैप्सिकम एक तो ग्रीन कलर का आता है, उसके अलावा कैप्सिकम तुम्हें येलो कलर का मिलेगा, उसके अलावा कैप्सिकम तुम्हें रेड कलर का मिलेगा। चलो कैप्सिकम नहीं तो रोज तुम्हें व्हाइट रोज, ब्लैक रोज, रेड रोज, पिंक रोज, न जाने कितने कलर के रोज मिलेंगे, इनफैक्ट येलो, है ना। तो ये रोज जो है अलग अलग कलर के मिले, दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। आर यू गेटिंग व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय वेराइटी? अच्छा, अब ऐसे ही फ्रूट्स में वेराइटीज आती है। इफ यू ऑब्जर्व मैंगोस में भी अलग अलग तरह के मैंगोस मिलते हैं। आई डू नॉट नीड टू से द नेम्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर, आई नो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोस। अब जब अगर मैं मैंगोस की बात करती हूँ उसमें वेराइटीज आती हैं। अब कैसे मैं ये वेराइटीज को यूज कर सकती हूँ? सपोज एक मैंगो ऐसा है जो मीठा है और एक मैंगो ऐसा है जिसमें पल्प ज्यादा है ना, जिसके अंदर का जो पल्प है, जो तुम्हें फ्लेशी पार्ट जो अच्छा लगता है वो ज्यादा है, और एक मैंगो मीठा है लेकिन उसमें फ्लेशी पार्ट कम है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दो मैंगोस है, एक मैंगो क्या है जो पतला है, मतलब उसके अंदर पल्प नहीं है, कम है और मीठा है, ठीक है। दूसरा मैंगो ऐसा है जो पल्पी है लेकिन मीठा नहीं है। ओके, व्हाट कैन आई डू इज आई कैन टेक दिस टू प्लांट्स एंड आई कैन हाइब्रिड देम। हाइब्रिड कराने का मतलब क्या कि मैं इसकी फीचर्स का क्या लेती हूँ, इसकी फीचर्स का क्या ले रही हूँ, पल्प, कि भाई मुझे पल्प भी ज्यादा चाहिए, मतलब मुझे एक ऐसा मैंगो चाहिए जिसमें पल्प भी ज्यादा है और मिठास भी ज्यादा है, इट शुड बी मोर स्वीट। तो कैसे मुझे मिलेगा? ऐसे ही ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो एक, मतलब जैसे तुमने देखा ना कि वेराइटी मैंने एक ही ली, मैंगो है ना, वेराइटी एक ली कि फ्रूट एक लिया, प्लांट एक लिया, प्लांट मैंने एक लिया, वेराइटीज दो ली, है ना। एक मैंगो ऐसा है जिसके पास पल्प ज्यादा है, एक मैंगो ऐसा है जो मीठा ज्यादा है लेकिन वो पल्पी नहीं है। What if I want to have a mango which is having more pulp and more sweetness? I want to mix these two varieties. Another example, ऐसा प्लांट ले सकते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, जैसे मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगोस, इसलिए मैंने मैंगोस का एग्जांपल दिया। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्लांट है जो ज्यादा फ्लावर्स देता है, ठीक है, हम कंसिडर ये भी कर सकते हैं कि एक प्लांट है जो ज्यादा, जैसे रोज ले लेते हैं, तो रोज का एक प्लांट ऐसा है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। रोज का जस्ट अ मिनट, रोज का एक प्लांट ऐसा लेते हैं जिसके पास फ्लावर्स ज्यादा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब एक स्टेम पे उसके ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 5 तो मिलेंगे ही। बट अगर एक प्लांट रोज का ऐसा है जिसमें तुम्हें
तीन ही मिलते हैं, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। अभी रेड, रोज का यूजुअली रेड कलर होता है, तो इसका ब्राइट रेड कलर है, इसका डल रेड है। मतलब क्या, अगर मुझे ज्यादा नंबर ऑफ रोजेस चाहिए पर मुझे डल वाला नहीं चाहिए, मुझे तो ब्राइट वाला चाहिए, ठीक है। ये है ब्राइट रोज, ठीक है। इसके पास जो ये प्लांट के पास जो रोजेस आते हैं ना वो ब्राइट रेड आते हैं, इसके पास जो आते हैं ना वो डल आता है, डल। तो इतना अच्छा खासा नहीं है, पर इसमें नंबर्स ज्यादा है ना। हम कहते हैं ना कि हर एक के पास अपनी अपनी खूबी होती है ना, हर एक के पास अपना अपना इंटेलिजेंस होता है, नॉट ओनली इन स्टडीज, लेकिन किसी ना किसी में यू आर एक्सेलिंग इन एनी फील्ड। सिमिलरली इस प्लांट के पास क्या खासियत है कि ये ज्यादा नंबर ऑफ रोजेस दे सकता है, बट अगेन हैविंग डिसएडवांटेज की डल रेड है। यहाँ पे ये प्लांट के पास क्या खासियत है कि इसके पास ब्राइट रोजेस है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई नंबर ऑफ रोजेस इज लेस। व्हाट कैन आई डू, आई कैन हाइब्रिड दिस टू। भाई मुझे तो एक ऐसा प्लांट चाहिए है ना, ह्यूमन ग्रीनीनेस, कि जिसमें नंबर ऑफ रोजेस भी ज्यादा है और इसके पास ब्राइट रेड कलर हो। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगी, फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्लांट व्हाट कैन आई डू, आई वुड गो बाय आर्टिफिशियल मेथड नोन एज grafting, known as grafting. Okay, so if I observe this grafting, what I am doing is I am taking scion, that is twig or bud of a plant. मान लो मैंने इसका ट्विग ले लिया। अच्छा देखो, अभी ट्विग में भी ना डिपेंड करता है, जैसे इस केस में क्या होगा कि मुझे पता है किसके पास नंबर ऑफ रोजेस ज्यादा आ रहे हैं, इसके पास, यानी मैं इसके स्टेम पे जो बड्स होंगे वो ज्यादा होंगे, इसके स्टेम पे बड्स ज्यादा होंगे। तो मैं क्या करूंगी, इसका एक ट्विग जो है यहाँ से तोड़ दूंगी, ये पूरा तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको ये वाला हटा के ये वाला पोर्शन इस पे लगा दूंगी, ठीक है। सो यू नो व्हाट कैन आई डू इज, जस्ट अ मिनट, मान लो ये ज्यादा नंबर वाला है लेकिन डल है, और ये जो है ये कम नंबर वाला है, ठीक है। मतलब क्या कि इसके स्टेम पे जो बड्स होंगे वो ज्यादा होंगे, तो मैं ना इसकी स्टेम तोड़ देती हूँ, इसका भी मैं तोड़ूंगी। क्या करूंगी, इसको निकाल के फेंक दूंगी, और मैं क्या करूंगी, ये कलेक्ट करूंगी, इसको मैं इधर अटैच कर दूंगी, ऐसे कुछ। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इसके पास क्या फीचर है, ब्राइट रेड, तो इसमें भी वो ब्राइटनेस दिखेगी। अब नेक्स्ट टाइम जो न्यू प्लांट ग्रो होगा, मतलब आगे जब ये ग्रो होगा, जो न्यू फ्लावर आएगा, तो नंबर तो बढ़ ही रहे हैं क्योंकि इसमें बड्स ज्यादा है, साथ ही साथ इसमें ब्राइट रेड मिलेगा। समझ रहे? तो जो पार्ट ट्विग और बड ऑफ प्लांट जो ये हमने लिया पार्ट, दिस इज नोन एज स्कियन, और जिस पे हम अटैच करेंगे, जिस दूसरे स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, देखो स्टेम ऑफ अनदर प्लांट जिस पे अटैच करेंगे उसको बोलते हैं स्टॉक। उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। आर यू गेटिंग? तो मैंने एक ऐसा प्लांट लिया, ठीक है, जिसका मैंने ट्विग लिया या उसको बड ले लिया। ये जिसका ले रही हूँ उसको मैं बोलूंगी स्कियन। जिसपे मैं अटैच कर रही हूँ, जो स्टेम अभी भी रूट से जुड़ी हुई है, उस स्टेम पे जब मैं अटैच करती हूँ वो वाले पोर्शन को मैं बोलूंगी स्टॉक। आर यू गेटिंग? तो मैंने दो प्लांट्स को एक ही प्लांट बना दिया। अब ये एक प्लांट में मुझे फायदा क्या है, मुझे दोनों फायदे मिल रहे हैं। मतलब क्या, मुझे नंबर ऑफ रोजेस भी ज्यादा मिल रहे हैं और ब्राइट कलर वाले रोजेस मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग? प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज वन मेथड, ग्राफ्टिंग। ओके, और ये ज्यादातर किस में होता है, मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगोज। ओके, अनदर इज कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि a healthy young branch of a plant having leaf buds is cut off and planted in moist soil। ठीक है, तो उसमें से इसका ये क्या है, विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर्स एंड सीड। भाई इससे फायदा क्या मिल रहा है, मान लो रोज, ऐसे बोगेनविलिया एक अनदर प्लांट है, और शुगर केन। ये तीन प्लांट्स सीजनल होते हैं, और शुगर केन में तो एक साल होता है, ये एक साल पूरा लगाता है। ऐसे तो हर 6-6 महीने में यू आर गेटिंग फ्रूट, बट ये एक साल लगाता है फ्रूट देने में, ग्रो होने में। मतलब इन शॉर्ट शुगर केन को बहुत टाइम लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बोगेनविलिया एंड रोज का सीजनल होता है, सीजन होता है तभी आता है।
मान लो कि अगर तुम्हारे पास फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, सो विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर्स, विदाउट वेटिंग फॉर सीड्स, अगर तुम्हें ये प्लांट्स चाहिए तो कैसे, तो उनकी तुम लीव्स ले लो, ऐसी ब्रांच लो जिसके पास बड्स है। ठीक है, कौन से बड्स, लीफ बड्स। मैंने कहा ना बड्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बर्ड्स विल गिव राइज टू फ्लावर, कुछ बर्ड्स विल गिव राइज टू लीव्स, कुछ बर्ड्स विल गिव राइज टू स्टेम। तो अगर स्टेम में ऐसे बर्ड्स है जो लीव्स ग्रो करने वाले हैं, सो वो वाले ब्रांच को तुम कलेक्ट करो एक प्लांट में से, फॉर एग्जांपल रोज, उसको कट करो और मॉइस्ट सॉइल में डालो, यू वुड बी गेटिंग अनदर रोज प्लांट, है ना। तो तुम सीजन का वेट करो, कब रोज आएगा, रोज को कलेक्ट करो, उसके सीड्स को, सीड्स इन द सेंस उसमें फ्रूट नहीं होता, बट देयर आर ओव्यूल्स, so that we would be studying further in sexual reproduction. But sexual reproduction भी रोज का कर सकते हैं, but for that we have to wait for flowers. Without waiting for flowers, how can we make grow this rose plant is by cutting. क्या कट कर रहे हैं इसमें, we are cutting such a branch which is having leaf buds. इसको कट करके moist soil में डालेंगे, we would be getting new plant. Again moist soil में डाला, so we have to ensure कि उसको अच्छे से पानी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं और अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, then it would be able to grow, it would be successful. समझ आ रहा है? So this was about what? Cutting. Next is layering. Layering is the another artificial method. इसमें क्या है कि young branch bend towards ground and covered with moisture. Something related to buds of side shoots. इसमें क्या करते हैं, साइड शूट को ले रहे थे, ऐसी साइड शूट को ले रहे थे जिसमें बड्स हो। जैसे हम साइड शूट को सॉइल के कांटेक्ट में ला रहे थे, वो बड्स में से रूट्स भी आ रही थी और स्टेम भी आ रही थी, याद आ रहा है? हाँ, तो ऐसे अगर मैं लेयरिंग की बात करूं, लेयरिंग में क्या होता है, इसके पास जैसे ये हम कर सकते हैं जैस्मिन, रोज एंड बुगेनविलिया। सो इसमें क्या होता है कि एक प्लांट है तो इसकी यंग ब्रांच लेंगे जो ग्रो कर रही है ना। तो ये प्लांट है तो इसकी जो यंग ब्रांच जो अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई है ना, जो अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई, इसको लेकर सॉइल में डाल देंगे, यानी इसको यहाँ से ऐसे बेंड करके सॉइल में डाल दिया। सॉइल में डाला तो क्या होगा, ये पॉइंट पे रूट आ जाएगा और शूट ग्रो होगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही अब इसकी यंग ब्रांच ले लेंगे, यंग ब्रांच को सॉइल में मतलब सॉइल पे रख के कवर कर देंगे सॉइल से, तो इसमें रूट आ जाएगा और शूट आ जाएगा। समझ रहे? ऐसे यू कैन कंटिन्यू दिस चेन, इसको बेंड कर देंगे, हाँ, और इसमें से रूट और शूट। कंडीशन क्या है, यंग ब्रांच, ठीक है, कोई बड़ी सी ओल्ड ब्रांच नहीं लेंगे, यंग ब्रांच क्यों ले रहे हैं, ग्रोथ जल्दी होगा ना, जल्दी दिखाई देगा। समझ आ रहा है? दिस वुड बी हैपनिंग इन जैस्मिन, रोज एंड बुगेनविलिया। अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। अनदर मेथड इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कटिंग टिश्यू फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स। मैंने कहा ना ग्रोइंग टिप में कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या है, इज हैविंग सेल्स व्हिच कैन डिवाइड। तो वो हम कलेक्ट करते हैं, कट करके कलेक्ट करते हैं। ग्रोइंग टिप है, मान लो ये प्लांट है के ऊपर से पतला, नीचे से मोटा, या हैविंग रूट्स। सो ये जो पार्ट है ये ग्रो हो रहा है ना, ऊपर ग्रो होता जा रहा है, ये कभी कभी इधर, ये इस तरफ ग्रो हो रही है, इस तरफ। तो ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स को कट करके वी आर कलेक्टिंग अल्टीमेटली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किया? सेल्स आर केप्ट इन न्यूट्रिएंट मीडियम। कुछ एक मीडियम होता है, कुछ एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट है। अब ये न्यूट्रिएंट है क्या, कौन से न्यूट्रिएंट, दीज आर नथिंग बट हार्मोन्स। ये है हार्मोन्स। तो इस कुछ हार्मोन्स, स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्या रिस्पॉन्सिबल है दीज हार्मोन, दीज हार्मोन्स अलाउ सेल्स टू डिवाइड। अब तुम डिवाइड करो, अल्टीमेटली मान लो तुमने वो ग्रोइंग टिप डाली थी और दिस इज द ग्रोइंग टिप जो तुमने प्लांट में से कट करके डाली, इसके अंदर हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स क्या करेंगे, ये ग्रोइंग टिप को सिग्नल भेजेंगे कि भाई अब तुम रूट ग्रो करो। तो इस ग्रोइंग टिप में से रूट ग्रो होना स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे तुम्हें दिखता है कि रूट ग्रो होना स्टार्ट हो गई, यू रिमूव दिस ग्रोइंग टिप
and you place in another nutrient medium, एक दूसरा nutrient. This is the first nutrient medium. Second nutrient medium में क्या होगा, जैसे ही तुम उसमें भी कुछ पर्टिकुलर हार्मोन होता है, वो तुम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे क्या होता है, क्या डालते हैं. तो कुछ डालते हैं, कुछ सरप्राइजिंगली डालते हैं. तो क्या होता है कि अभी तुमने ऐसे ग्रोइंग टिप डाली है जिसके पास रूट्स हैं, लेकिन ये जो इसमें हार्मोन्स है इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ शूट. जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कि शूट भी आ गए, अब तुम क्या कर सकते हो, इसको लेकर सॉइल में यू कैन सो दिस विथ रूट्स एंड प्लांट. मतलब अल्टीमेटली तुमने एक प्लांटलेट बना दिया है ना, और फिर उसको तुमने सॉइल में डाला. मतलब तुमने ग्रोइंग टिप की मदद से पहले एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जिसमें रूट्स ग्रो हुई, फिर उसको निकाल के दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जिसमें शूट्स ग्रो हुई, फिर उसको निकाल के तुमने सॉइल में रखा ताकि वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाए. दिस इज नथिंग बट टिश्यू कल्चर. कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्राइसेंथेमम्स, ऑर्चिड्स, एस्पेरेगस. तो ये प्लांट्स में यू कैन सी दिस मेथड. ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टेबल बनाया, ऐसे तुम इसका भी टेबल बना सकते हो. कैसे, सो यू कैन मेक टू कॉलम्स. एक कॉलम में तुम लिखोगे ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, सो वेराइटीज ऑफ मैंगोज. कटिंग के एग्जांपल्स क्या है, रोज, बोगेनविलिया, शुगरकेन. फिर लेयरिंग के एग्जांपल्स जैस्मिन, रोज, बोगेन. टेबल बनाओगे, याद कर दो. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब टेबल बना लो, कटिंग लिख रहे हो तो कुछ ऐसे 2-3 टर्म्स लिखो कि जिससे तुम्हें याद आ जाए कटिंग में क्या होता है. कि भाई यंग ब्रांच, बस इतना लिखो, यंग ब्रांच. यानी हमें प्लांट की यंग ब्रांच को कट करना है, उसको सॉइल में प्लांट करना है. ग्राफ्टिंग में तुम स्कियॉन एंड स्टॉक लिख दो. स्कियॉन क्या है, तो इट इज द बड, द स्टेम और द ट्विग व्हिच इज कंटेनिंग बड ऑफ प्लांट. ओके. नेक्स्ट, स्टॉक, स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, जिसपे हम वो स्कियॉन अटैच करने वाले, उसको टाई कर देंगे. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. समझ आ रहा है. लेयरिंग में क्या होगा, सो लेयरिंग में हम यंग ब्रांच को सॉइल में ला रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं. जब मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं वो यंग ब्रांच को ऐसे खींच के सॉइल में रख रही हूँ, उसको सॉइल से ढक दे रही हूँ. इससे क्या कर रही हूँ, ये जो मैं बना रही हूँ दैट इज नोन एज लेयर. इसलिए प्रोसेसिंग को बोलते हैं लेयरिंग. क्या कर रही हूँ, मैं यंग ब्रांच को सॉइल के कांटेक्ट में ला रही हूँ और उस पर सॉइल कवर कर रही हूँ. व्हाट अल्टीमेटली आई एम गेटिंग इज नथिंग बट अ लेयर. प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग. एग्जाम्पल्स लिख देना. टिश्यू कल्चर में तुम क्या लिख सकते हो, न्यूट्रिएंट मीडियम. ग्रोइंग टिप, न्यूट्रिएंट मीडियम. ये 2 वर्ड लिखोगे, याद आ जाएगा कि मुझे प्लांट में से ग्रोइंग टिप कलेक्ट करनी है, उसमें मुझे 2 न्यूट्रिएंट मीडियम में डालना है. पहले न्यूट्रिएंट मीडियम में डालती हूँ, ठीक है, कंटेनिंग सम हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग रूट्स. दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में डालती हूँ तो शूट हो जाती है. जैसे ही मुझे दिखता है कि रूट और शूट अब आ गया है, मैं ग्रोइंग टिप को लेकर सॉइल में डाल देती हूँ एंड इट वुड अल्टीमेटली लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट. क्लियर? So this was all about vegetative reproduction and artificial method of vegetative reproduction. In the next lecture, we would be discussing their advantages and disadvantages.